So let us start with this chapter. So the name of this chapter is Euclid Geometry, Introduction to Euclid Geometry. In this chapter, we shall discuss Euclid. Euclid is a person. The photo is shown on your screen in 325 BC to 265 BC before Christ, right? What we are going to discuss in this chapter, we shall discuss Euclid approach to geometry. तो जो Euclid की approach थी geometry के लिए, we are going to discuss in this chapter and shall try to link that approach of the Euclid with the present day geometry. जो हमारी प्रेजेंट डे की ज्योमेट्री है उससे हम लोग इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे राइट लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर सो लुक एट दिस इंट्रोडक्शन Introduction. The word geometry comes from the Greek words geo, meaning the earth, and mertin, meaning to measure. Geometry appears to have originated from the need for measuring land. This branch of mathematics was studied in various from in every ancient civilization, be it in Egypt, Babylonia, China, India, Greece, the Incas, etc. The people of the civilization faced several practical problems which required the development of the geometry in various ways. Okay, here what we are going to discuss is basically the name of the chapter contain a word geometry. एक geometry word chapter के नाम के अंदर आता है. So यहाँ पे geometry word का meaning समझाने की कोशिश की गई है. तो geometric word basically it is made up by the two words. So दो word से मिलके बना है. एक होता है geo. Geo means होता है it is not a geosim, right? Geo it is geo. Geo जियो सो जियो का मतलब होता है जियो मीन्स अर्थ जियो का मतलब होता है अर्थ और जियोमेट्री सेकंड इसमें ज्योमेट्री वर्ड में वर्ड यूज हुआ मैट्री सो ये ग्रीक वर्ड है मैट्रियन इसका मीनिंग होता है मीजर सो बेसिकली ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई थी द स्टार्टिंग ऑफ द ज्योमेट्री इज ये लैंड को मेजर करने के लिए यूज किया गया था ज्योमेट्री को तो मीन्स ये इसीलिए इसका वर्ड भी आया ज्योमेट्री सो मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ अर्थ को मेजर करने के लिए तो लैंड को मेजर करने के लिए इसका यूज होता था तो दैट्स वाई दिस वर्ड फॉर्म ज्योमेट्री एक वर्ड हमें ओरिजिनेट हुआ ज्योमेट्री वर्ड मिला ठीक है सो बेसिकली नाउ दिस ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अब ये ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच वर स्टडीड इन फॉर्म इन वेरियस एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी स्टडी किया जाता था इजिप्ट में बेबीलोनियन चाइना इंडिया ग्रीस इनकास एक्सेट्रा राइट सो एंशियंट सिविलाइजेशन में सो द उसमें पीपल क्या करते थे एंशियंट सिविलाइजेशन में इस ज्योमेट्री को यूज करते थे उन पीपल्स को क्या होता था बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी लैंड को मेजर करने के लिए राइट practicals problem so which require the development of the geometry in various ways so geometry develop क्यों हुई डेवलप ये इसलिए हुई क्योंकि एंशियंट टाइम में लैंड को मेजर करने की रिक्वायरमेंट होती थी उसको मेजर करने की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी प्रैक्टिकली मेजर करने से अच्छा था कि उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किया और उसको मेजर कर लिया सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस branch of mathematics geometry from the ancient civilization right I hope you understood the word the meaning of this word geometry similarly uh, you have a subject that is called as geography सो बेसिकली जियोग्राफी में क्या होता है जियो मीन्स अर्थ अर्थ को हम लोग ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं सो ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सो द लैंड द टोटल एरिया इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ सो इन दैट सब्जेक्ट जियोग्राफी वी स्टडीड अबाउट द जियो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ राइट आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल For example, whenever the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining fields, different land owner. After such flooding, these boundaries had to be redrawn. For this purpose, the Egyptians developed a number of geometric techniques and rules for calculating simple areas, also for doing simple constructions. The knowledge of geometry was also used by the computing volumes of granaries,
and for constructing canals and pyramids. They also knew the correct formula to find the volume of truncate pyramids. You know that the pyramid is a solid figure that base of which is triangle or square or some other polygon that it has and its side faces triangle covering the point at the top. Okay. So in this example, what they want to explain is that जो रिवर नील या रिवर नाइल इसको बोल सकते हैं, ओवरफ्लो करता था, ठीक है। तो जो बाउंड्रीज होती थी एडजॉइनिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर्स, तो जो लैंड ओनर्स होते थे वो अपने अपने फील्ड की बाउंड्री करके रखते थे। तो जब रिवर ओवरफ्लो होता था तो वो बाउंड्रीज वहां पे वाइप आउट हो जाती थी, राइट। So these boundaries had to be redrawn, उनको दोबारा से बनाना होता था। So for this purpose, Egyptian developed a number of geometric techniques. तो इजिप्शियन ने geometric techniques, number of geometric techniques develop की। क्या क्या करती थी वो टेक्निक्स? दैट टेक्निक्स आर फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल एरियाज एंड फॉर डूइंग सिंपल कंस्ट्रक्शंस। जो बाउंड्रीज होती थी फील्ड के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स होते थे, बाउंड्रीज होती थी, ठीक है। तो वो ओवरफ्लो होता था रिवर, तो वाइप आउट हो जाती थी। तो इजिप्शियन ने क्या किया, एक ज्योमेट्रिक टेक्निक डेवलप की, किस लिए? उन बाउंड्रीज को बनाने के लिए और फॉर सिंपल कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। सो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ी उनको? दैट नीड द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, राइट। और इसकी नॉलेज होती है वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज कंप्यूट करने में भी यूज होती है, कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूज होती है, पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूज होती थी नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, राइट। और इजिप्शियन ऑल्सो नो द फॉर्मूला ऑफ to find out the volume of truncated pyramid. So what is truncated pyramid is the figure is shown here. So नीचे देखो, नीचे यहाँ पे एक truncated pyramid की फिगर गिवन है, ठीक है। तो पिरामिड क्या होता है? पिरामिड हम लोगों को पता है, पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज अ ट्रायंगल, जिसका बेस ट्रायंगल होता है, या स्क्वायर भी हो सकता है, या सम अदर पॉलीगन भी हो सकता है, राइट। एंड इट्स साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स covering at a point covering to a point at the top. So this is a truncated pyramid. So वो क्या करते थे इजिप्शियन? इस truncated pyramid की वॉल्यूम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते थे by using the formula of geometry, right? So now let's move forward. Look at this. In the Indian subcontinent, the excavations at Harappa and Mohenjo-daro, etc., show that the Indus Valley civilization, about 3000 BCE, made extensive use of geometry. It was a highly organized society. The cities were highly developed and were very well planned. For example, the roads were parallel to each other and there was an underground drainage system. The houses had many rooms of different types. This shows that the town dwellers were skilled in mensuration and practical arithmetic. The bricks used for construction were kiln fired, and the radial length, breadth, thickness of the bricks was found to be 4:2:1. Okay. So I hope you know about this civilization, Harappa and Mohenjo-daro. Yes, sir. And Yes, sir. there's a movie also. In that movie, Hrithik Roshan is there. In that movie, what is the name of that movie in which Mohenjo-daro civilization is? Mohenjo-daro is the name of that movie, right? So basically, Indus Valley civilization 3000 BC before Christ. So before Christ से 3000 ईयर पहले, अब 2000 साल हम लोग बाद में आ गए हैं। तो मतलब अब से लगभग 5000 साल पहले एक सिविलाइजेशन होती थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एक्सेट्रा सिविलाइजेशंस होती थी। इसमें उन्होंने क्या किया? दे मेड अ एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया उन लोगों ने। और वो जो सिविलाइजेशन थी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज होती थी उस सिविलाइजेशन में 5000 ईयर्स अगो, राइट। सिटीज वर डेवलप्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड। तो सिटीज जो होती थी बहुत डेवलप सिटीज होती थी वहां पे, और एज कंपेयर टू नाउअडेज अब से भी बहुत ज्यादा डेवलप सिटीज होती थी और वेरी वेल प्लान्ड सिटीज होती थी,
ठीक है। तो रोड्स जो होती थी, रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हाईली डेवलप्ड एंड वेरी प्लान सिटीज आर देयर। कैसे होती थी हाईली डेवलप्ड? तो जो रोड्स होती थी पैरेलल टू ईच अदर, राइट, और पैरेलल टू ईच अदर, लाइक इन ग्रेटर नोएडा द रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। एंड जो ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो हम लोग आजकल यूज करते हैं इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, आजकल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एट दैट टाइम 5000 ईयर्स अगो। तो वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यूज करते थे उस टाइम पे, ठीक है। जो हाउसेज होते थे उसमें जो रूम होते थे, जो हमारे हाउसेज होते हैं, आजकल भी हम लोगों के हाउसेज होते हैं, एंड वी आर इन द 21st सेंचुरी, तो रूम देखेंगे, ये रूम भी ऐसा ही है, साइड वाला रूम भी ऐसा ही है, ये रूम भी ऐसा ही है। तो उनके जो रूम्स बनाते थे, रूम्स भी डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते थे उनके घर में, राइट। दिस शोज दैट टाउन डेवलपर्स वाज स्किल्ड। इससे हमें पता लगता है कि वो स्किल्ड थे मैंसुरेशन में, very skilled person at that time in mensuration and practical arithmetic, and they know the exact use how to apply the geometry, theoretical geometry we were studying nowadays, so how to apply that in a practical daily life problems and practical daily life situations and to form the houses। तो जो ब्रिक्स के बारे में भी बताया यहाँ पे, जो ब्रिक्स यूज करते थे वो कंस्ट्रक्शन में, तो ब्रिक्स की लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का जो रेशियो होता था, दैट इज 4:2:1। तो लेंथ ऐसे अगर 4 मीटर होगी, लेंथ अगर मान लीजिए ऐसे 4 मीटर होगी, सपोज कर लीजिए 4 मीटर तो बहुत बड़ी लेंथ होती है, और 2 उसकी ब्रेथ होती थी, लेंथ ब्रेथ इज 2 एंड थिकनेस इज 1, थिकनेस इज 1, राइट। सो दिस इज all about this civilization, Harappa and Mohenjo-daro civilization. So they made extensive use of the geometry at that time. So now let's move forward. ये चैप्टर आपको थोड़ा हिस्ट्री की तरह लगेगा because it is a theoretical chapter. So now let's move forward in this chapter. Look at this written on the screen. Yes, sir. In ancient India, the Sulba Sutras 800 BCE to 500 BCE were the manuals of geometrical constructions. The geometry of the Vedic period originated with the construction of altars or Vedis and fireplaces for performing Vedic rites. The location of the sacred fires had to be in accordance to the clearly laid down instructions about their shapes and areas if they were to be effective instruments. Square and circular altars were used for household rituals, while altars whose shapes were combinations of rectangles, triangles, and trapeziums were required for public worship. The Sriyantra given in the Atharva Veda consists of 9 interwoven isosceles triangles. These triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary triangles. Though accurate geometric methods were used for the constructions of altars, the principles behind them were not discussed. So they are talking about ancient India. In ancient India, the Sulba Sutra 800 BCE to 500 BCE. So before Christ, 800 years before Christ, were the manual of geometrical constructions. ये एक manual होता है geometrical constructions का, right? Sulba Sutra. The geometry of the Vedic period originated with the construction of Vedis and the fireplaces for performing Vedic rites. सो जो ज्योमेट्री जो वैदिक पीरियड में इसका ओरिजिनेट हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टर्स और वेदिस, ये क्या होते हैं पता है किसी को? व्हाट इज दिस एल्टर्स और वेदिस? सर एल्टर्स मतलब जो वेद थे सर, जैसे अथर्ववेद। वेदी इज द सैक्रिफिशियल, what is Vedi? Vedi is the sacrificial altar in the Vedic religion. Such altars were an elevated outdoor enclosure generally strewn with kusa grass and having receptacles for the sacrificial fire. It was of various shape but usually narrow in the middle. They were used in various type of yajna ritual. Fire altars remain part of ritual in some Hindu festival and rite of passage. In particular, circling around a sacred remain. कितने मुश्किल तो वर्ड यूज किए हुए इन्होंने। महावेदी, द ग्रेट ऑफ वेदी इसको ही बोलते हैं, जो ये हवन जो करते हैं ना। यस सर, कभी कभार ऐसा वेदिक भी वर्ड यूज होता है सर, जब कुछ फंक्शन होता है या फिर पूजा होती है ना।
हाँ शायद तो 30 हो सकता है इसको बनाने में यूक्लिड ज्योमेट्री काम आती हो। हाँ, ये वेदी होना, ये इसको इट कैन बी फॉर्म्ड इन वेरियस वेज, इसको कई सारे तरीके से बनाया जाता था। इसको ट्रायंगल की शेप में बनाते थे, स्क्वायर की शेप में बनाते थे। पिरामिड सा भी होता है, एक नीचे से हाँ, छोटा ऊपर से पतला हो जाता है। सो ये है वेदी। ओके, सर इसके आगे लिखा भी हुआ है, एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। हाँ, तो यही है। यही है वेदी। वेदी मतलब जो हवन, जो पूजा करते हैं उसमें जो ये होता है, ये स्ट्रक्चर जो बनाते हैं जिसके अंदर फायर हम लोग करते हैं। सर क्या पता सर अच्छे से मतलब पूजा करने के लिए तो इसको इसमें अच्छे से बनाना होता है तो ज्योमेट्री यूज सर होती फिर है। नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि ये मतलब जो डायरेक्शंस की वजह से होता है ना, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कितना पुण्य होगा, तो फिर इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं। Yes, yes. So in ancient India, the Sulba Sutra 800 BCE to this were the manual of the geometrical construction. ये manual होता है geometrical construction। The geometry of the Vedic period originated with the construction of altars और Vedis। तो ये जो ज्योमेट्री का जो ओरिजिन हुआ था वैदिक पीरियड में, वो किसके कंस्ट्रक्शंस करते थे? वेदीज का, राइट। वेदीज एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। So look at this. Let me show you the photo of this. What is the meaning of this word Vedic? So this is the photo. ये वेदी है यहाँ पे। So this is वेदी। ऐसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, जो हवन हम लोग करते हैं, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। ज्योमेट्री इज यूज टू फॉर्म दिस वेदी। इसमें ज्योमेट्री यूज कर रखी है इन लोगों ने, राइट। लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेदी, जहाँ पे हम लोग फायर बर्न करके और वैदिक राइट्स यहाँ पे पूजा करते हैं इसमें। सो दिस इज द वेदी, वेदीज, राइट। और इनको अल्तार्स भी हम लोग बोलते हैं, अल्तार्स और वेदीज, राइट। सो बेसिकली वैदिक पीरियड में इसका ओरिजिनेशन हुआ था। किसका ओरिजिनेशन? ज्योमेट्री का, राइट, ज्योमेट्री का, राइट। तो पहले, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार्स और वेदीज में इसको ओरिजिनेट हुआ था। देन it's the location of the sacred fires had to be in accordance to the clearly laid down the instructions about their shape and areas if they were the effective instruments, right। square and circular altars, altars आप समझ रहे हैं, altars या वेदीज इसको बोल रहे हैं, जो हवन करने के लिए जो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें फायर लगाते हैं, राइट। were used for household rituals where altars whose shapes were the combinations of rectangles की combinations की shape होती है, कई बार ट्रायंगल्स के शेप होती है, ट्रेपीजियम शेप्स वर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वर्शिप, राइट। द श्री यंत्र गिवन इन अर्थवेद कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल। सो 9 इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल होते हैं, ये है अर्थवेद में। तो ये हमने देखा भी है शायद, 9 ट्रायंगल्स को इस तरह से बना देते हैं। 1 2 3 श्री यंत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। श्रीयंत्र द स्पेस, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम, ये होता है श्रीयंत्र। सो श्रीयंत्र में 43 ट्रायंगल्स इसमें यूज हो रखे हैं। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप, द श्रीयंत्र गिवन इन अर्थवेदा कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल एंड these triangles are arranged in such a way that produce 43 subsidiary triangles. Though the accurate geometric method were used for the construction of altars, the principle behind that were not discussed, right? अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वो बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल की, और 9 इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल वो बोल रहे हैं यहाँ पे। 9 इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल्स होते हैं किसमें? श्रीयंत्र में। consist of 9. So look at this figure, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this triangle contain 9 isosceles triangle, right? अब ये एक सिंगल है, सिंगल इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल, इसके अंदर 9 सिंगल इंटरवोवन आइसोलिसिस ट्रायंगल्स हैं, राइट। इसके 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल्स को यूज करके हमने यहाँ पे बनाते हैं, इसमें अर्थवेदा में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं श्री यंत्र। So it consists of this type of 43 triangles, right? And this is called as
Sri Yantra, right? दो एक्यूरेट ज्योमेट्रिकल मेथड वर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार्स। तो जो हम लोग अल्तार्स बनाते हैं, वेदीज बनाते हैं, वेदी जो हवन करने के लिए वेदी बनाते हैं, सो बेसिकली वेदी हम लोग बनाने के लिए एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड हम लोग यूज करते थे एंशियंट इंडिया में, एंशियंट वैदिक पीरियड में, टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज, राइट? और उनके पीछे क्या प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल वर नॉट डिस्कस्ड, राइट? Now let's move forward. I hope this triangle, this Sri Yantra is clear to you now, and this interwoven isosceles triangle is clear to you now. What the कहाँ से ये ज्योमेट्री की ओरिजिनेट हुआ है, वैदिक पीरियड से ओरिजिनेट हुआ है, ये आपको इससे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, राइट? वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, स्क्वायर की शेप में वेदीज बनाते हैं, ट्रायंगल की शेप में वेदीज बनाते हैं, ट्रेपीजियम की शेप में वेदीज बनाते हैं, राइट? सो इन एंशियंट इंडिया कि ये सारी चीजें दे रखी हैं। एंड यस, वो यूक्लिड जो थे वो सर हड़प्पा और ये वैदिक पीरियड के बाद आए थे। वी आर कमिंग टू यूक्लिड। यूक्लिड के बारे में भी हम लोग आने वाले हैं। यूक्लिड पे, यूक्लिड का मैंने बताया था, ये आए थे यूक्लिड यहाँ पे 325 बीसी टू 265 बीसी में, लेकिन अभी हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट, वी आर एट 800 बीसी। अभी आप देखेंगे हम लोग कहाँ पे हैं, 800 बीसी टू 500 बिफोर क्राइस्ट से हम लोग 800 साल पहले हैं अभी। और वो जो इक्विलिड आए थे वो आए थे यहाँ पे 325 में, 325 बीसी, ठीक है? अभी हम लोग 500 साल पीछे की बातें कर रहे हैं। वी आर इन द वैदिक पीरियड। अभी हम लोग आने वाले हैं इक्विलिड पे भी, राइट? सो इक्विलिड को कितने दिन हो गए? इक्विलिड को 2000 ईयर्स तो हम लोग आगे आ गए हैं, 21st सेंचुरी चल रही है, तो लगभग 2325 साल पहले की ये बात है जब इक्विलिड होते थे। ये जीरो ज्यादा लगा दी मैंने, 2325 ईयर्स एगो, राइट? एंड अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग हैं अभी वैदिक पीरियड में हैं, एंशियंट इंडिया की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एंशियंट इंडिया का ही बेसिकली ज्योमेट्री का ओरिजिनेशन ही वहीं से हुआ है, इक्विलिड तो बहुत बाद में हुए हैं, ठीक है? 800, तो इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्स 2800 ईयर्स एगो, 2800 साल पहले की हम लोग यहाँ पे कुछ बातें की हम लोगों ने। श्री यंत्र देखा, ये बहुत बहुत मुश्किल वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, अर्थ वेदा, श्री यंत्र, जिनको समझना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 43 ट्रायंगल्स को कैसे यूज किया गया है इसमें लगा के आप देखेंगे। एक सिंगल ट्रायंगल, उसके अंदर 9 आइसोलिसिस इंटरवोवन ट्रायंगल्स थे, और यहाँ पे 43 इस तरह के ट्रायंगल्स यूज किए गए हैं। इस शेप पे को हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में हमें भी ज्यादा पता नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये वेदीज आपने देखी, डिफरेंट स्ट्रक्चर की वेदीज हम लोग बनाते हैं, राइट? सो नाउ लुक एट दिस हियर, सो लेट अस रीड these things. These examples shown that geometry was being developed and applied everywhere in the world, but this was happening in an unsystematic manner. What is interesting about this development of geometry in the ancient world is that they were passed on from one generation to next, either orally or through palm leaf messages or by other ways. Also, we find that in some civilization like Babylonia, geometry remained a very particle oriented discipline, as Practical, was the case. Was, sir? very practical, not particle, practical oriented. Okay, sir. Very practical oriented discipline. As was the case in India and Rome, the geometry developed by Egyptians mainly consisted of the statements of result. There were no general rules of the procedure. In fact, Babylonians and Egyptians used geometry mostly for practical purpose and did very little to develop it as systematic science. But in civilization like Greece, the emphasis was on the reasoning behind why certain construction worked. The Greeks were interested in establishing the truth or statement they discovered using deductive reasoning. See Appendix 1. Okay.
तो बेसिकली वेरियस ज्योमेट्री का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है इन्होंने इसमें। तो वेरियस एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं, ज्योमेट्री कैसे डेवलप हुई है, ज्योमेट्री कैसे अप्लाइड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट दिस वाज हैपनिंग, द ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है ये एक अनसिस्टमेटिक मैनर में डेवलपमेंट हुआ है, राइट। What is interesting about this development of geometry in the ancient world? Ancient world के ज्योमेट्री में इंटरेस्टिंग क्या है, were passed from one generation to the next generation। तो उन्होंने एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दिया, ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट होता गया, एंड इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कैसे पास किया, या तो ओरली पास किया उन्होंने, या उन्होंने दे राइट दैट पाम लीफ मैसेज, राइट, और बाय अदर वेज, और अदर वेज उन्होंने यूज किए, राइट। जो सिविलाइजेशन हुए लाइक बेबीलोनिया सिविलाइजेशन हुआ, ज्योमेट्री उन्होंने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन में यूज की। ऐसे इंडिया में भी हुआ और रोम में भी, ठीक है। लेकिन इजिप्ट में क्या हुआ, इजिप्ट में मेनली कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट। द ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ओनली, बट देयर वर नो जनरल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। इजिप्ट में जो क्या था, वहां पे कोई जनरल प्रोसीजर नहीं था। इनफैक्ट बेबीलोनियन एंड इजिप्शियन यूज ज्योमेट्री मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पर्पस में जो ज्योमेट्री यूज की है वो बेबीलोनियंस ने यूज की है एंड इजिप्शियंस ने यूज की है, राइट। और जो उन्होंने इट डिड अ वेरी लिटिल टू डेवलप इट इन अ सिस्टमैटिक साइंस, तो उन्होंने उसका प्रैक्टिकल यूज किया है, राइट। बट जो सिविलाइजेशन है, जैसे ग्रीस सिविलाइजेशन था, उन्होंने एम्फेसिस किया इसकी ज्योमेट्री की रीजनिंग पे, behind what certain construction work। जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, रीजनिंग, व्हाई वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। सो दे पुट एम्फेसिस ऑन द रीजनिंग बिहाइंड व्हाट, व्हाई सर्टेन कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट। सो ग्रीक्स जो थे वर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिटेक्टिव रीजनिंग। तो डिटेक्टिव रीजनिंग उन्होंने अप्लाई की और वेरियस स्टेटमेंट्स जनरेट किए ग्रीक्स ने, और रीजनिंग करते थे वो, रीजनिंग के थ्रू कि ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कैसे। तो वेरियस ज्योमेट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रीस ने क्या किया, डिटेक्टिव रीजनिंग के थ्रू उसने किया। ऑल दैट थिंग्स आर रिटन हियर, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन। A Greek mathematician, Thales is credited with giving the first known proof. This proof was of the statement that a circle is bisected, that is, cut into two equal parts by its diameter. One of Thales' most famous pupils was Pythagoras, 572 BCE, whom you have heard about. Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent. This process continued till 300 BCE. At that time, Euclid, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged it in his famous treatise called Elements. He divided the elements into 13 chapters, each called a book. These books influenced the whole world's understanding of geometry for generations to come. In this chapter, we shall discuss Euclid's approach to geometry and shall try to link it with the present day geometry. Okay. So here we are going to know about who is Euclid. Euclid एक टीचर थे, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। कहाँ पे, इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, राइट। कलेक्टेड, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ऑल द नॉन वर्क एंड अरेंज इट इन फेमस ट्रीटाइज। इन्होंने एक बुक लिखी और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, किसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, और इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था एलिमेंट, राइट। उस बुक को डिवाइड किया 13 चैप्टर्स में, and that book element is divided into, written by Euclid and divided into 13 chapters, right, and each into the 30 each called a book, और हर एक चैप्टर को बुक हम लोग बोलते हैं। so this book influenced the whole world understanding of geometry and generation to come। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने ये बुक लिखी, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की Euclid ने, और एक ये बुक लिखी एलिमेंट जिसमें 13 चैप्टर्स थे। तो जो इनकी जो बुक है उसने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया ज्योमेट्री को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री
was and for generations to come, जो आगे की generations आ रही है, and we are also in this 21st century studying about this the books and all that things given by the Euclid at that time. It's approx 2300 years ago जो Euclid ने बताया था, हम लोग उसको आज तक फॉलो कर रहे हैं, और अब हम लोग आज भी 21st सेंचुरी में बैठ के इसको पढ़ रहे हैं, राइट? सो और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है इसमें। ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उनका नाम था थेल्स, तो फोटो इज ऑल्सो देयर। सो इट इज 640 BC to 546 BC, तो इक्विलिड से पहले थे थेल्स, ठीक है, इक्विलिड इनके बाद में हुए। इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ, इनको क्रेडिट जाता है जो इन्होंने एक प्रूफ दिया था, फर्स्ट नोन प्रूफ, एंड वो दैट प्रूफ वाज द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर। सर्कल क्या होता है? सर्कल को उसका डायमीटर बाइसेक्ट कर देता है दो इक्वल पार्ट में। इसको प्रूफ किया था थेल्स ने 640 BC to 546 in that period. One of the Thales, इनका जो एक one of the Thales most famous pupil was Pythagoras. Pythagoras के बारे में हम लोग जानते हैं, Pythagoras थ्योरम भी हम लोग पढ़ते हैं, राइट, अप्लाइड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। सो Pythagoras थ्योरम क्या थी? Pythagoras थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो Pythagoras किसके स्टूडेंट थे? इनके, थेल्स के। तो Pythagoras इज द स्टूडेंट ऑफ दिस पर्सन थेल्स, राइट? 572 BC, अब से लगभग अप्रोक्स 2500 अप्रोक्स ईयर्स पहले, 2500 साल पहले, पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? ये थेल्स के। मोस्ट फेमस पीपल थे थेल्स के, होम यू हैव हर्ड अबाउट, जिनके बारे में हमने सुन रखा है, ओके। पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्री। पाइथागोरस ने और पाइथागोरस का जो ग्रुप था उसने डिस्कवर की है मैनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो डिस्कवर की हैं वो पाइथागोरस ने डिस्कवर की हैं। पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? थेल्स के, राइट? और इसके थेल्स के बाद पाइथागोरस उनके स्टूडेंट थे, और उसके बाद आए इक्विलिड, राइट? एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्विलिड एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो पाइथागोरस ने क्या किया? एक तो पाइथागोरस थ्योरम दी थी, वेरी फेमस थ्योरम, वी ऑल नो अबाउट दैट, अप्लाइड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हमें, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? और उन्होंने डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो थ्योरी थी ज्योमेट्री के बारे में उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया। अब इक्विलिड ने क्या किया? इक्विलिड आए इनके बाद 300 BC में, और 300 BC तक वो उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते गए। कौन? पाइथागोरस। तो इक्विलिड आए, इक्विलिड ने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, but all that information about the geometry and about the geometric properties जो पाइथागोरस ने और उनके फ्रेंड्स ने, उनके ग्रुप्स ने, थेल्स ने, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन थी, और उन्होंने एक बुक लिख दी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक? इज एलिमेंट, वेरी वेरी फेमस बुक, एलिमेंट्स। एंड दिस एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू द 13 चैप्टर्स। ये एलिमेंट्स जो बुक है 13 चैप्टर्स में डिवाइड की है, एंड दैट 13 चैप्टर्स आर आल्सो called as a book individually, right? So basically let's start with this chapter. So this is some history of the chapter we were discussing. So in this chapter we shall discuss Euclid approach to geometry and shall try to link it with the present day geometry. इस चैप्टर में हम लोग Euclid की क्या अप्रोच थी ज्योमेट्री को लेके, ठीक है? ज्योमेट्री काफी पहले से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, राइट? लेकिन इक्विलिड की क्या अप्रोच थी ज्योमेट्री को लेके, इक्विलिड ने क्या क्या एक्सियोम्स, क्या क्या पोस्टुलेट्स हमें बताए थे ज्योमेट्री को लेके, इस चैप्टर में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 5 postulates Euclid ने बताए थे। I am using this word postulates, we will discuss that word also, what is the meaning of this word postulates, और axioms हमें दिए थे। So now we are going to discuss that postulates and axioms given by Euclid in this chapter number 5, right? It's time up today. Rest of the thing we will start this chapter in the next class. So today we have gone through about the various historical facts and various the histories about this Euclid and about the geometry today in detail. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing in the next class. Thank you, sir. Have a great day.